Here, three concentric metallic spherical shells of radius r, 2r, and 3r are given charges q1, q2, and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Then ratio of the charges given to the shells q1 jam, q2 jam, q3 is okay. So here in this problem, okay, we have three concentric spherical shells. Okay, so here I am drawing this concentric spherical shells. Okay, let radius of the shells over here, which is given r, 2r, and 3r. Okay, so here in this problem, charges on this three shells are q1, q2, and q3 respectively. Okay, over here in this problem you can see that this charge is q1, which is in the inner shell of radius r, induces a minus q1 on the inner surface of the shell 2 over here. Okay, and due to this minus q1, equal amount of charge which is plus q1 is induced on the surface of outer surface of shell of radius 2r. Okay, same as this q1 plus q2, which is on the outer surface of the shell 2, induce the charge minus q1 minus q2 on this inner surface of the shell 3, and same it induces the charge plus q1 plus q2 on the outer surface of the shell 3. Okay, so here you can see that charges on the outer surfaces of the three shell are q1, q1 plus q2, and q1 plus q2 plus q3. Okay, now in this problem hint is given, and that is surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal. Okay, so surface charge density, if I am calculating for first shell, then sigma 1, I can say sigma 1 is equal to q1 upon 4 pi r square. Okay, let it be capital R, 4 pi r square. Sigma 2 is equal to, we can say, charge on it is now q1 plus q2 divided by its area, which is 4 pi 2 r square. So after simplifying, I will get q1 plus q2 upon 4 pi 2r square. So I can write 4r square. Okay, and surface charge density on the third shell is a q1 plus q2 plus q3 upon area, which is 4 pi, and into square of the radius of the third shell, which is 3r, so 3r square. Okay, so after simplifying, I will get q1 plus q2 plus q3, okay, divided by 4 pi 3r square, so I can write 9r square over here. Okay, now here the hint is surface charge densities of the three shells are equal. So here I can say, as sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma 3, I can compare all these three equations. So after comparing these three equations, sigma 1 is q1 by 4 pi r square must be equal to q1 plus q2 upon 4 pi. It is 4r square, so I can directly write 16 pi r square, and that is equal to q1 plus q2 plus q3 divided by 9 fours, I can say 36 pi r square. Okay, so here I have three equations. So after simplifying these three equations, we will get the answer of charges, which is q1 jam, q2 jam, q3, and that is equal to 1 jam, 3 jam, 5. Okay, so here we can say option number B is correct one. Okay, here a solid sphere of radius r1 and volume charge density rho is equal to rho 0 by r is enclosed by a hollow sphere of radius r2 with a negative surface charge density sigma, such that the total charge in the system is 0. Rho 0 is a positive constant and small r is the distance from the center of the sphere. The ratio of r2 by r1 is okay. So here in this problem you can see that r1
is the radius of the solid sphere and r2 is the radius of hollow sphere. Here charge density on this solid sphere, which is inner one, is rho is equal to rho 0 by r. Okay, and charge density of this outer is sigma with a negative charge. Okay, इसके ऊपर जो charge है वो negative है, and over here the hint is given, and which is, you can say, total charge on the system is 0, so I can write q1 plus q2 is equal to 0. Okay, now suppose this solid sphere is made up of large number of concentric shells. Okay, which varies from center to radius r1. जो इनसाइड वाला स्फीयर है उसको मान लेते कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयरिकल शेल का बना हुआ है. ठीक है, वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहे हैं, फ्रॉम सेंटर ओ टू रेडियस r1. ठीक है, तो इन दैट केस एक शेल कंसीडर कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, r है. ठीक है, जिसकी रेडियस होती है स्मॉल r. सपोज उसकी थिकनेस dr है. ठीक है, उसकी थिकनेस ले ली dr सी थी, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि सपोज उसके ऊपर dq जितना चार्ज है, तो dq कितना होगा, इंटीग्रेशन में बोल सकता हूँ कि dq वैसे dq होता है रो इंटू dv, वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयरिकल शेल. तो dq आप इंटीग्रेशन कर लोगे रो इंटू dv. ठीक है, तो रो है आपका रो 0 बाय आर, टोटल क्यू मिल जाएगा आपका इंटीग्रेशन करने पे. ठीक है, तो रो 0 बाय आर है, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर और स्फीयरिकल शेल का, और उसकी थिकनेस है dr. ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है 4 पाई रो 0, उसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर निकाल लिया, एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचेगा आर dr. अब यहाँ पे ऐसे जो शेल्स है वो 0 से r1 तक वेरी हो रहे हैं, तो आपका 4 पाई रो 0 एज इट इज कांस्टेंट, आर dr का आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये आपकी लिमिट है 0 टू r1. ठीक है, तो आप देखो ये 2 है 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल क्यू जो है वो कितना आएगा, 2 पाई रो 0 r1 स्क्वायर. ठीक है, ये था चार्ज. किसके बारे में बात हो रही थी, सॉलिड स्फीयर. सपोज उसका चार्ज हमने यहाँ पे लिया है q1 है, तो ये हो गया आपका q1. ठीक है, अभी q2 फाइंड आउट करना है. तो q2 देखो, q2 के लिए यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा जितनी है. ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया होती है. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को अगर सरफेस सब्जेक्ट बना लिया तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इनटू एरिया. तो अगर चार्ज यहाँ पे सपोज दूसरे वाले के ऊपर q2 है, तो q2 क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया. एरिया है उसका 4 पाई r2 स्क्वायर. अभी देखो ये नेगेटिव है, वो हमें प्रॉब्लम में दे दिया, तो ये हो गया माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर. ठीक है, तो अभी मेरे पास q1 है, q2 है, मेरे पास हिंट क्या थी यहाँ पे कि q1 प्लस q2 इक्वल टू क्या है, 0 है. तो हियर आई कैन से q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 0. पुटिंग द वैल्यू ऑफ q1 एंड q2, सो 2 पाई रो 0 r1 स्क्वायर, q2 कितना है, माइनस सिग्मा 4 पाई r2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो इसको सामने की तरफ भेज दो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा. तो आपके पास प्रॉब्लम में है रो 0 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिग्मा r2 स्क्वायर. ठीक है, तो मुझे चाहिए r2 बाई r1 का रेशियो. तो r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे तो मिलेगा रो 0 बाई 2 सिग्मा. ठीक है, तो अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये आपको r2 बाई r1 मिल जाएगा. तो वो आपका r2 बाई r1 यहाँ पे बनेगा रो 0 बाई 2 सिग्मा. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है. ठीक है, okay, here in our figure plus q charge is located at one edge of the cube, then electric flux through the cube due to plus q charge is, okay, so here in this figure I am drawing one cube. Okay, so here in this cube a plus q charge is located at one edge of the cube. So from this figure we can say that this plus q charge is further shared by the other 3 identical cubes, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे एक क्यूब होगा. ठीक है, यहाँ पे ऊपर पे भी ऐसे ही किसके ऊपर एक क्यूब होगा, और ये क्यूब जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला जो दूसरा क्यूब ड्रॉ किया,
इसके ऊपर जो एक क्यूब होगा वो भी ये चार्ज उसके साथ भी शेयर होगा, इसके ऊपर जो होगा उसके साथ भी शेयर होगा। तो सिर्फ ये प्लस क्यू चार्ज है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो क्यूब है उसके साथ सिर्फ इसका 1/4 पार्ट शेयर होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे फाई हम लोग कितना लिख सकते हैं, फाई क्या होता है, क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पे क्यू एंक्लोज कितना हो रहा है ये वाले के साथ, तो Q/4 जितना हो रहा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। सो आंसर आएगा आपका Q/4 एप्सिलॉन 0। सो ओवर हियर आई कैन से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। If an insulating non-conducting sphere of radius capital R has a charge density rho, the electric field at a distance small r from the center of the sphere for distance r less than r will be. So मुझे स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस कैपिटल R। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक का स्फीयर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर जितनी है। ठीक है, अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कहाँ पे फाइंड आउट करना है, आर लेस देन आर के लिए, मतलब इसके इनसाइड फाइंड आउट करना है। सो हियर वी आर इमेजिंग वन गॉसियन सरफेस। ओके, इमेजिन अ गॉसियन surface of a radius small r. Okay, so here you can say r less than r. Okay, so let rho is the volume charge density, okay, of this sphere of radius r. The in that case rho क्या होगा, सपोज इसके ऊपर टोटल चार्ज q है और उसकी रेडियस कितनी कैपिटल r है, तो हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से अगर q को सब्जेक्ट बना ले तो q कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब जितना होगा। ये आपका टोटल चार्ज है कैपिटल क्यूब। ठीक है, तो अभी देखो ये r लेस देन r के लिए फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ इतने पोर्शन के इनसाइड कितना चार्ज एंक्लोज हो रहा है वो मुझे गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज उसके इनसाइड जो चार्ज एंक्लोज हो रहा है वो क्यू डैश जितना है, तो क्यू डैश कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन विच इज वी कैन से 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अभी रो की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू आई कैन से 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलो तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि q r क्यूब अपन कैपिटल R क्यूब। ये मिल गया मुझे चार्ज किसके इनसाइड, ये जो पोर्शन है सिलिंडर मतलब गॉसियन सरफेस है हमारा, उसके इनसाइड मुझे चार्ज जो इंक्लोज हो रहा है वो मिल गया है। ठीक है, अभी चार्ज हो गया है तो गॉसियन लॉ यूज कर सकते हैं। सो आई कैन से बाय यूजिंग गॉसियन लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या होता है, क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। अभी देखो ये ई आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकल जाएगा डी ए। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन होगा ए जितना, और उस वो आपका एरिया जो इसके इनसाइड इंक्लोज होगा 4πr² वो पोर्शन का। अभी क्यू जो एंक्लोज हुआ है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है, QR क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। ठीक है, चलो सो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 4π को सामने नीचे की तरफ भेज देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलेगा मुझे क्यूब इंटू यहाँ पे r² है, यहाँ पे r क्यूब है, r² कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पे बच जाएगा। सो q इंटू r डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन 0, और ये क्या r क्यूब यहाँ पे बच गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ज q का मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पे q की वैल्यू रख देते हैं, तो q आपका है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू ये स्मॉल r बच गया डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो ये 4π r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा रो r डिवाइड बाय दिस 3 एप्सिलॉन 0, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे देखो ये r था, ठीक है, वो कैंसिल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही आ रहा है वो सी है। सो ऑप्शन नंबर सी। हियर इन दिस प्रॉब्लम two insulating plates are both uniformly charged in such a way that the potential difference between them is V2 minus V1 is equal to 20 volt. Here plate 2 is at higher potential
the plates are separated by d is equal to 0.1 meter and can be treated as infinitely large. An electron is released from the rest on inner surface of plate 1. What is its speed when it hits plate 2? Okay, so here separation between these two plates is, let it be d. Okay, so here d is equal to 0.1 meter. Okay, now one electron which is at inner surface of plate 1 is released. Okay, so it hits the plate 2 and we have to find a speed with which this electron hits the plate 2. So here I can say change in potential energy of that charge, which is Q into delta V, must be equal to gain in kinetic energy half mv square. So Q into delta V, let it be delta V is over here V2 minus V1 half m. Value of m is also given over here. Now after taking V square as a subject, I can get a 2q V2 minus V1 divided by m. Okay, we have the value of 2, charge 1.6 into 10 to minus 19, V2 minus V1 is 20 volt and value of m is 9.31 into, it is a 9.11 given in a problem, into 10 to minus 31 kg. Okay, so after simplifying we get the answer of V square and taking square root of this V square, I can get answer 2.65 into 10 to 6 meter per second. Okay, so here I can say option number D is correct one. The potential at a point x due to some charges situated on the x-axis is given by Vx is equal to 20 divided by x square minus 4 volts. The electric field E at a x is equal to 4 micrometer is given by, here potential Vx is equal to 20 divided by x square minus 4. Okay, and we have to find electric field. Okay, at x is equal to 4 micrometer. So to find this electric field, what we have to do, we know that electric field is minus dv by dx in x direction. Okay, so minus d by dx of, you can say, 20 into x square minus 4 raised to minus 1. Okay, I can write this x square minus 4 as a x square minus 4 raised to minus 1 while writing this term in a numerator. Okay, so here let's start differentiating this term. So minus d by dx, okay, 20 over here is constant, so I am taking out of a differentiation, so minus 20 d by dx of x square minus 4 raised to minus 1. So minus 20 is as it is in bracket, we have to differentiate this power first, so power minus 1 as it is, x square minus 4 raised to minus 2. ओके, एंड देन आफ्टर ये जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो उसका होगा 2x. ठीक है, इसमें आप एज अ हिंट ये रूल यूज कर सकते हो कि d बाई डी एक्स एक्स रेस टू जो n होता है वो क्या होता है, n एक्स रेस टू n माइनस 1 जितना होता है. ठीक है, और हाँ ये x का फिर से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर का फिर से सर ने 2x इतना किया. ठीक है, तो आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, ये साथ में 2x है तो ये 40x लिख देते हैं इसको. ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेस टू माइनस हाफ है तो ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये मिल गया EX. अब मुझे EX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया कितना लेना है, 4 माइक्रोमीटर लेना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 4 माइक्रोमीटर. तो न्यूमरेटर में कितना हो गया, ये 40 इंटू 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 160. आप डिनोमीटर में देखो ये 16 माइनस 4 मतलब 12 का स्क्वायर है तो ये हो गया 144.
ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ई एक्स आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो ये 10/9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, बिकॉज हमने जो एक्स की वैल्यू ली थी वो माइक्रोमीटर में थी। तो ये हो गया ई एक्स। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है। ईयर a spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume in the figure. The electric field inside the emptied spaces. So over here in this problem we have to find electric space field inside the emptied space. So here I am considering first a solid sphere without cavity. Okay, so पहले तो without cavity हम लोग सपोज सेंटर सी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो इनसाइड फॉर आर लेस देन आर, सपोज ये जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो फॉर आर लेस देन आर हमने आगे एक एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना होता है, ρr/3ε0 जितना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कैविटी नहीं थी। ठीक है, ये पोर्शन में केस में देखो सर ने कैविटी नहीं लिया। अभी क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे कैविटी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट पी हो गया कैविटी के इनसाइड। सपोज ये अभी सॉलिड स्फीयर का सेंटर था, इसको C1 बोल देते हैं, और यहाँ पे ये जो इनसाइड कैविटी है उसके सेंटर को C2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था स्फीयर का टोटल का। ठीक है, अभी यहाँ पे उतना पोर्शन आप देख सकते हो कैविटी हमने सपोज क्रिएट की है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने के लिए क्या करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिमूव करना है तो पहले ये इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड गिनना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिनने के लिए सपोज C2 से P तक का डिस्टेंस है वो R डैश ले लेते, ये R था अपना। ठीक है, ये C1 से P तक का जो डिस्टेंस था वो R जितना था। ठीक है, तो ये C2 से P तक का डिस्टेंस R डैश ले लिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ρ/3ε0 इंटू R डैश जितना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये वाला E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E=E1 माइनस E2। ये पूरे में से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ρ/3ε0 कॉमन, ये बोलेंगे R माइनस R डैश आपका बच जाएगा, इसको वेक्टरली लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका R माइनस R डैश है। ठीक है, उसको वेक्टरली देखो अभी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपका C1 to P था वो R था, C to P जो डिस्टेंस था वो R डैश था। तो सपोज ये आपका C1 है, वहाँ से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो आपका R है, ये वेक्टर आपका R है। सेम C2 से जो P डिस्टेंस है वो आपका कितना है, R डैश है। तो यहाँ पे सपोज C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं वो L है, तो C1 से C2 तक का वेक्टर L है। तो यहाँ पे देखो आप ये जो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आई कैन से दैट L प्लस R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, R जितना होगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, R माइनस वेक्टर R माइनस क्या होगा, R डैश जितना होगा। ठीक है, तो ये R माइनस R डैश को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो था वो कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ρ/3ε0 R माइनस R डैश की जगह पे लिख देते हैं वेक्टर L। ठीक है, तो वेक्टर L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ये E जो है वो R के ऊपर डिपेंड है नहीं करता है। ठीक है, अब जब कि E R के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B है मेरा वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो होगा और R के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, adjacent diagram shows a charge plus Q held on an insulating support S and enclosed by a hollow spherical conductor represents the center of the spherical conductor
and P is a point such that OP is equal to X and SP is equal to small r. The electric field at point P will be, okay, so here in this problem we have a hollow spherical conductor. Okay, here I am drawing that hollow spherical conductor. Okay, in this hollow spherical conductor at point S we have the charge plus Q. Okay, distance of this point S from point P is given, which is, we can say, small r, and center of this hollow spherical shell is O, and distance of O to P is also given, which is X over here. Okay, now here in this problem we have to find electric field at this point P. Okay, so here to find the electric field at point P I am drawing a Gaussian surface, okay, of radius x by taking O as a center. x जितनी रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और O क्या है, अपना सेंटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, E इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या होता है, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी ए, तो आप देख सकते हो इसका ये गॉसियन सरफेस जो कि इसकी रेडियस x है उसका एरिया होगा 4πx²। अभी जो यहाँ पे Q एंक्लोज्ड हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, वो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इनर सरफेस पे माइनस Q जितना चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, और यहाँ पे प्लस Q जितना चार्ज इंड्यूस करेगा। तो ये माइनस Q प्लस Q तो हो गए ज़ीरो, तो आपका ये जो टोटल चार्ज एंक्लोज्ड है वो कितना होगा, प्लस Q जितना डिवाइड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा आपका 1/4πε0 Q बाई x²। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Here a solid sphere of radius capital R has a charge Q distributed in its volume with a charge density rho is equal to K into R raised to A, where K and A are constant and R is the distance from its center. If the electric field at R is equal to R by 2 is 1/8 times that of R equal to R, the value of A is, okay, here in this problem one solid sphere is given and radius of this solid sphere is a capital R, charge on it is capital Q. Okay, now here density of this solid sphere is also given, charge density, which is K into R raised to A, where K and A are constant. Okay, here one hint is given that electric field at distance R is equal to R by 2 is 1/8 times electric field at distance R is equal to R. ओके, ये आपको एक हिंट दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस R इज इक्वल टू R बाई 2 कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इज इक्वल टू R। चलो, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस R, ठीक है। तो सपोज ये स्फीयर है और बहुत सारे शेल का बना हुआ है, ठीक है, और हर एक शेल की थिकनेस कितनी है, dr है। यहाँ पे एक शेल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, dr थिकनेस का एक शेल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर चार्ज है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बिफोर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड we use a Gaussian law that E into dA is equal to क्या होता है, Q enclosed by epsilon 0। तो E into dA, आप देखो अगर यहाँ पे R रेडियस का गॉसियन सरफेस लिया तो उसका एरिया होगा 4πr², ठीक है। और Q enclosed, हम लोग ये enclosed फाइंड आउट करना है, तो ये इसके इनसाइड जो चार्ज हो dQ ले लेते हैं, तो टोटल चार्ज क्या क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू हम लोग लिख सकते हैं कि रो इंटू क्या होगा, डी वी। तो रो मतलब आपका है के इंटू आर रेस टू ए, और डी वी इतने पार्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, उतना वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 4πr² और उसकी थिकनेस है
डी आर। तो ये मुझे मिल गया चार्ज डी क्यू। ठीक है, तो इतने पार्ट का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो इसको इंटीग्रेशन कर देते हो, तो ये होगा इंटीग्रेशन रो डी वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो वो रो डी वी है आपके पास के इंटू आर रेस टू ए 4πr² डी आर जितना डिवाइड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो, सामने की तरफ है ई इंटू 4πr²। तो अभी आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ से ये 4πr² क्या कर देते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आर रेस टू ए बचा हुआ है। ठीक है, ये एक आर रेस टू ए आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कि आर रेस टू ए डी आर। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल नहीं करेंगे हम इसको, अभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन के इनसाइड था, तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेप फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा ये ई इंटू 4πr² एज इट इज़ था, और सामने की तरफ इंटीग्रेशन में था कि आर रेस टू ए 4πr² डी आर बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में था तो सामने से कैंसिल नहीं होगा। तो देखो ये ई इंटू 4πr² एज इट इज़ बच गया। ठीक है, यहाँ पे जितना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 4πk बाई एप्सिलॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, उसको रख दिया आउट ऑफ इंटीग्रेशन। पीछे आपके पास है आर रेस टू है और आर रेस टू टू है, अब बीच सेम है तो पावर का एडिशन कर लेते हैं, तो आपके पास बचेगा आर रेस टू टू प्लस ए जितना। ठीक है, इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हो गया 4πk एज इट इज़ बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आर रेस टू 3 प्लस ए अपन 3 प्लस ए। ये कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, सो ज़ीरो से कैपिटल आर तक। ये हो गया ए इंटू 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पे 4π कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ई कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू सपोज आर चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं r² सामने की तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, वो कैपिटल R² है, r इक्वल टू आर फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया k बाई एप्सिलॉन ज़ीरो r²। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हो गया वो आर रेस टू 3 प्लस ए अपन 3 प्लस ए। ठीक है, चलो यहाँ पे r² है, यहाँ पे आर रेस टू 3 प्लस ए, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर कितना मिलेगा मुझे, के बाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर रेस टू 1 प्लस ए बचेगा अपन 3 प्लस ए। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एट डिस्टेंस आर इक्वल टू आर। ठीक है, ये वाला मिल गया है। अभी मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए एट आर इक्वल टू r/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या रख देंगे, r/2 रख देंगे। ठीक है, चलो, सो इन अ नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर वी आर पुटिंग इन द इक्वेशन ऑफ r इक्वल टू r। जो मुझे यहाँ पे मिला था वो था k बाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर रेस टू 1 प्लस ए अपॉन 3 प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला मिला था। अब एट r इक्वल टू r/2 रख देते हैं फॉर्मूला में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। तो E2 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो k बाई एप्सिलॉन ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में जहाँ पे r है उसकी जगह पे r/2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये r/2 रेस टू 1 प्लस ए है डिवाइड बाई कितना है अपने पास 3 प्लस ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक हिंट दी है कि E2 इज इक्वल टू कितना है 1/8 टाइम्स E1 है। ठीक है, तो चलो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो दोनों को कंपेयर करने पे आप देख सकते हो k बाई एप्सिलॉन ज़ीरो 3 प्लस ए जो ये टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास बचेगा r/2 रेस टू 1 प्लस ए एंड राइट हैंड साइड बचेगा r रेस टू 1 प्लस ए डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r रेस टू 1 प्लस ए भी दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाई 2 रेस टू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1/8
8। अभी ये 1/8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। अभी देखो बेस सेम है, पावर डायरेक्टली इक्वलाइज कर देते तो 1 + ए = 3 हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर से ए की वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे 2 मिल रही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, here two short dipoles of dipole moment P are placed at two corners of a square as shown in the figure. What is the ratio of magnitudes of electric field at 2 points O and A? Okay, so here in this problem we have to find electric field ratio at point O and A. So here I am drawing the figure. Okay, here two dipoles are placed at this point. Likewise the direction as shown in the figure. Okay, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, और आपका जो पॉइंट ओ है वो आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दूसरा यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और जो ये स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, ए जितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये डाइपोल मोमेंट P है, ये भी डाइपोल मोमेंट P है, दोनों है क्या है, डाइपोल मोमेंट सेम है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होता है डाइपोल की वो कितना होता है, 2kp बाय जो डिस्टेंस होता है वो r³ होता है। और जो इक्वेटर पे होता है वो कितना होता है, इन मैग्नीट्यूड होता है kp/r³। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है एक्सिस पे वो कहाँ पे होती है, अलोंग दी डाइपोल मोमेंट, मतलब पी की डायरेक्शन में भी हो डायरेक्शन में ही होती है। लेकिन इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। और नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि जो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये ए पॉइंट देखो आप कहाँ पे है, ये डाइपोल से ए डिस्टेंस पे है और उसके इक्वेटर पे ऐसे बोलेंगे क्योंकि ये हो गया डाइपोल। ठीक है, ये वाला डाइपोल ऐसे है तो पॉइंट ए उसके भी क्या है, इक्वेटर पे है। और दोनों देखो आप देखो पॉइंट ए है और दोनों डाइपोल से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके इक्वेटर पे है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E1। तो हमें पता है इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट टू क्या होता है, डाइपोल होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E1 इसकी वजह से। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। सेम अब यहाँ पे देखो इसकी डाइपोल मोमेंट अपवर्ड है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट ए इसके इक्वेटर पे है तो उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, उसको बोल देते हैं E2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे E1 = E2 होगा, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है और दैट इज इक्वल टू E लिख देते हैं। तो E क्या है मेरा, एक्सिस पे है या इक्वेटर पे है, ये वाला इक्वेटर पे है तो आपका E है kp/ डिस्टेंस का क्यूब, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस A है तो A का क्यूब होगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यू कैन से वेक्टर E1 + E2। सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपका हो गया E1² + E2²। ठीक है, देन आफ्टर आप देखो दोनों के बीच में एंगल 90 है तो मैं √2 E1 E2 cos 90 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, cos 90 आपका 0 हो जाएगा, वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, √E² + E², क्योंकि E1 = E2 = E लिखा है हमने। तो आप देखो ये क्या हो गया, √2 टाइम्स E हो गया। तो इसको बोल सकते हैं कि ये √2 टाइम्स E मतलब कितना है, kp/a³ जितना है। ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे मिला है, मुझे ए पॉइंट पे मिला है तो उसको लिख देते हैं EA। ठीक है, चलो अब मुझे यहाँ पे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे O पॉइंट पे फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो O पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए ये प्रॉब्लम में हम लोग ये जो डाइपोल मोमेंट P है दोनों ये वाली और ये वाली, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकलेंगे, एक कंपोनेंट होगा टूवर्ड्स पॉइंट O, दूसरा ऐसे जा रहा होगा।
इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये एक होगा ये टूवर्ड्स हो, दूसरा इस तरफ होगा, ठीक है। चलो, तो ये अभी आपकी डाइपोल मोमेंट पी थी, ठीक है। ये एंगल पता है मुझे कितना होता है, 45 होता है। तो ये कंपोनेंट आप निकालोगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो अलोंग ओ है, ठीक है, ये और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों ही डाइपोल मोमेंट पी है। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, p/√2 होगा। ये वाला भी कंपोनेंट कितना होगा, p/√2 होगा। उसको p डैश बोल देते हैं, p डैश इज इक्वल टू p/√2 कंपोनेंट ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट p along this direction O, okay, for both the dipole। तो अब देखो ये जो डाइपोल है, ये जो कंपोनेंट है जो कि जिसके डाइपोल मोमेंट अब हमारी हो गई पी डैश, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ओ है, वो पी डैश के हम लोग बोल सकते हैं कहाँ पे, एक्सिस पे है, ठीक है। सेम यहाँ से भी देखोगे तो उसके भी एक्सिस पे है। सपोज ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये डाइपोल से वो तक का वो आर है, और ये डिस्टेंस भी आर है। तो अब ये डाइपोल की वजह से हमें पता है ये पॉइंट वो उसके एक्सिस पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, अलोंग दी पी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे हो गया, जो कि किसके इक्वल होगा, ये सेकंड वाली जो डाइपोल है उसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के ही डिस्टेंस आर सेम है, दोनों के डाइपोल मोमेंट पी भी सेम है। तो E2 यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये जैसे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ये कंपोनेंट की वजह से तो ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। ये अलोंग जो कंपोनेंट्स थे अलोंग पॉइंट ओ, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब ये वाले कंपोनेंट देखते हैं, ये वाला कंपोनेंट और सेम यहाँ पे भी ये वाला कंपोनेंट। तो डाइपोल मोमेंट पी के जो ये कंपोनेंट्स है बाकी जो बचे वो उसके इक्वेटर पे पॉइंट ओ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इसके इक्वेटर पे। तो ये डाइपोल की वजह से ये डाइपोल मोमेंट पी के जो पी डैश हो गया, ये अभी हमारा ये भी एंगल 45 होता है, इसलिए ये हमारा पी डैश है। तो पी डैश के इक्वेटर पे पॉइंट हो तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू पी होगी। तो यहाँ पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। सेम यहाँ पे भी देखो, ये डाइपोल के जो ये कंपोनेंट है उसके भी इक्वेटर पे है पॉइंट ओ, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे भी ई जितना ही होगा, ठीक है। तो अभी ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली कितना होगा, √2 टाइम्स ई होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 2e लिख देते हैं इसको, √2e नहीं, क्या होगा 2e जितना होगा, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है हमें, मुझे यहाँ पे जो इक्वेटर पे वो पॉइंट हो, ये दोनों कंपोनेंट पी डैश जो है उसके इक्वेटर पे है। तो के पी बाय डिस्टेंस का क्यूब। तो डाइपोल से ओ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये ए है, ये ए है, तो आपका पूरा डायगोनल कितना होगा, √2a होगा। तो ओ से ये डाइपोल तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, √2a/2 होगा। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना होगा, a/√2 का क्यूब, ठीक है। बिकॉज √2a/2 आपका कितना होगा, a/√2 का क्यूब होगा। और आपकी डाइपोल मोमेंट जो थी वो कौन सी थी, पी डैश थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पी डैश रखा है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 के एज इट इज रहने देते हैं। पी डैश हमारा था p/√2 डिवाइड बाई a/√2 क्यूब। तो a क्यूब डिवाइड बाई √2 का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स √2, ठीक है। तो अब देखो आपका ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4kp/a क्यूब। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो E0/EA फाइंड आउट करेंगे। EO मेरा मिला है मुझे 4kp/a क्यूब डिवाइड बाई √2kp/a क्यूब। तो kp/a क्यूब कैंसिल करने पे आपको मिलेगा 4/√2, ठीक है। तो 4/√2 इज इक्विवेलेंट टू वी कैन से 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2√2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। A block of mass m and charge q is connected to point O with the help of an inextensible string. The system is on a horizontal table. An electric field is switched on
in the direction perpendicular to string. What will be tension in a string when it become parallel to electric field? So here initially this block M is placed on horizontal table and charge on it is Q. Okay, when electric field is switched on, this block align itself in the direction of electric field. Okay, so because of force acting on it due to electric field, so final position जो उसकी है वो ये वाली है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, Q जितना है, ठीक है। तो अभी इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो ये एफबीडी में ये ब्लॉक है, उसमें डाउनवर्ड साइड टेंशन T लग रहा होगा, अपवर्ड उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q इंटू ई जितना, ठीक है, प्लस इसके ऊपर अपवर्ड एक और फोर्स लग रहा होगा विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड साइड, लेट इट बी mv स्क्वायर बाय l इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। यहाँ पे l जितनी आपको लेंथ दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स क्यू ही ऊपर होगा, ठीक है, और ये जो mv स्क्वायर बाय l है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से एफबीडी के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l प्लस क्यू ई। चलो, तो मुझे ये टेंशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ Q एंड E एंड L। ओके, तो चलो यहाँ पे ये स्पीड जो है mv स्क्वायर v मेरे पास नहीं है, तो हम लोग पहले स्पीड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या होता है यहाँ पे, फोर्स, और उसकी वजह से ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया, आप देख सकते हो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो उसके हाइट में जो इंक्रीज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो L जितना है, तो F इंटू एल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड अगर उसकी v है तो हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0। अब उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई इंटू एल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग mv स्क्वायर बाय एल को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो mv स्क्वायर बाय एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास होगा mv स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू 2qe। चलो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 2qe प्लस qe। तो टेंशन हमारे पास होगा 3qe जितना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर